مشکل کے وقت انسان اکیلے اللہ کو بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھولی پھیلائے، اور رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ کام دوسرے کے لیے کرے گا، دوسرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سمجھے گا، تو یہ مشرک بن جائے گا، اور اس طرح کے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو جس آدمی کی موت عقیدہ شرک پر آ جائے، شرک پر مر جائے، توبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر انسان زندگی میں شرک کرتا رہا، پھر شرکی عقیدے سے اس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ مرنے سے پہلے جو کیا کر لے، توبہ کر لے شرک سے، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن موت عقیدہ شرک پر آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہ بات خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کیا کیا جائے، شرک کیا جائے۔ شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو ایسا آدمی دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت دور کی گمراہی میں، جو حق سے کیا ہے بہت ہی دور ہے، عقیدہ توحید سے کیا ہے بہت دور ہے، دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، تو جو شخص آسمان سے اوپر سے گر پڑے وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مشرک شرک کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ من یشرک باللہ کانما خر من السماء، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسے ہے کہ آسمان سے گر پڑے، اور جو آدمی آسمان سے گرے وہ بچ سکے گا؟ وہ نہیں بچے گا۔ تو جس نے شرک کیا اس کی مثال بھی ایسے ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر فرما دی فکانما خر من السماء، کہ جس نے شرک کیا گویا کہ آسمان سے گر پڑا، اور جو آسمان سے گرے وہ بچے گا نہیں، تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مشرک بھی شرک کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ شرک سے مرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ لیکن موت عقیدہ شرک پر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، مہلک گناہ ہے، تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے سے بھی امت کو ڈرایا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات کے ساتھ مہلک گناہوں سے تم بچتے رہو، پرہیز کرو۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے، شرک ہے، الشرک باللہ۔ دوسرا گناہ وہ ہے السحر، جادو کرنا۔ تو جادو کرنا یہ بھی بڑا مہلک اور تباہ کن گناہ ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادوگر اور شیطان ان کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس معاہدے کی بنا پر جادوگر حرام کاموں کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، کفر یا شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ تو پھر شیطان جادوگر کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور جادوگر کے مطالبات کو شیطان کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جادو ہے۔ اور بعض جادوگر نعوذ باللہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں، لیٹرین میں، نعوذ باللہ، کیونکہ شیطان کو کیا کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ اور بعض جادوگر سورت فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں،
اور بعض जादूगर कुरानी आयात को गंदगी के साथ लिखते हैं, इस तरह के काम करते हैं। फिर शैतान जादूगर के मुतालबात को पूरा करता है और उसकी मदद करता है। तो जादू इसके अंदर भी क्या है, तासीर है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जादू उस वक्त असर करता है जब अल्लाह का हुक्म हो। जब अल्लाह का हुक्म ना हो जादू असर नहीं करता। जादू के अंदर असर है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो। तो जादू के जरिए आदमी को कत्ल भी किया जा सकता है, उसको बीमार भी किया जा सकता है, और जादू के जरिए मियाँ बीवी में जुदाई भी डाली जा सकती है। किसी के दिल में जादू के जरिए मोहब्बत भी पैदा की जा सकती है, नफरत भी पैदा की जा सकती है। तो ये सब काम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होते हैं। अल्लाह का जब हुक्म हो, अल्लाह का हुक्म ना हो तो फिर जादू के अंदर भी कोई तासीर नहीं रहती। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जादू के बारे में फरमाया कि वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नसिहर, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर थे अल्लाह के। यहूदी कहते थे नऊज़ु बिल्लाह हजरत सुलेमान जादूगर थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, क्योंकि जादू का अमल करना यह कुफ्र है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया। शयातीन लोगों को जादू की तालीम देते थे, और जादू सीखना, जादू करना यह भी क्या है, कुफ्र है। जादू करना, जादू सीखना यह भी कुफ्र है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी दौर खिलाफत के अंदर हुक्काम को यह पैगाम लिखकर भेज दिया कि हर जादूगर, मर्द औरत, सबको क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। तो जादूगर की सजा भी कत्ल है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौर खिलाफत के अंदर यह हुक्म दिया कि हर जादूगर मर्द हो औरत हो, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इसी तरह बाजला बिन अब्दा कहते हैं कि हमने 3 जादूगरों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह पैगाम भेजा था कि जादूगर मर्द औरत को क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। तो जादूगरी से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, मना किया है, क्योंकि यह भी मुहलिक गुनाह है, यह भी तबाह करने वाला गुनाह है। तो इससे भी इंसान को क्या करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसे किया है, तौबा करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर। और जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाह माफ फरमा देते हैं। तीसरा गुनाह जो कबीरा गुनाह है, मुहलिक गुनाह है, और वो है कत्ल, यानी किसी आदमी को नाजायज कत्ल करना। तो कत्ल करना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कातिल को 5 वईदें सुनाई है। कातिल के लिए 5 वईदें अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। 5 वईदें अल्लाह तबारक व तआला ने कातिल के लिए बयान फरमाई है कुरान मजीद के अंदर कि जो शख्स मोमिन को जान बूझ कर कत्ल कर दे, फजज़ाउहु जहन्नम, पहली वईद यह है कि उसकी जज़ा जहन्नम है। दूसरी वईद ये कि खालिदन फीहा, मुद्दत दराज तक जहन्नम में रहेगा। तीसरी वईद ये कि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला का उस पर गज़ब है, गुस्सा है। चौथी वईद ये कि वाला आना हूं, अल्लाह ने उस पर लानत की है जो मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे। और 5वीं वईद वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है कातिल के लिए। तो कातिल के लिए 5 वईदें अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है कि जो मोमिन को जानबूझकर क्या कर दे, कत्ल कर दे।
गैर मुस्लिम अगर इस्लामी हुकूमत में रहता है, इस्लामी हुकूमत ने गैर मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जानी भी माली भी, तो ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल करना भी बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आया कि जो शख्स किसी जिम्मी को कत्ल कर दे, जिसको इस्लामी हुकूमत ने जान और तहफ़्फ़ुज़ का क्या दी है, जमानत दी है, तो वो आदमी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। और जन्नत की खुशबू 40 साल मसाफत से पाई जाती है, 40 साल के सफर से पाई जाती है जन्नत की खुशबू। इतना आदमी दूर हो तो उसकी खुशबू सूंघ ले। लेकिन जो जिम्मी को कत्ल कर देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अब खुद अंदाजा लगाएं कि जब जिम्मी जो काफिर होता है उसके कत्ल करने की इतनी वईद है, इतनी सजा है, तो मुसलमान को कत्ल करने का कितना अजाब है और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजाब तैयार कर रखा है। तो कत्ल करना तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। इज्तनिबू सबअल मूबिकात अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व क़त्लु नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। चौथा गुनाह व अक्लुर रिबा, सूद खाना, ये चौथा बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने खरीद और फरोख्त को जायज करार दिया है, व हर्रमर रिबा, और अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को क्या करार दिया, हराम करार दिया। अरबी में अर्रिबा कहते हैं और उर्दू में सूद। तो अर्रिबा का माना होता है इजाफा, ज्यादती। लफ्ज़ी तर्जमा अर्रिबा का ज्यादती और इजाफा। लेकिन शरीयत में सूद और रिबा उसको कहते हैं कि इंसान 6 चीजों का तबादला करे और उनमें उधार हो एक तरफ से या ज्यादती हो। मिसाल के तौर पर गंदम का तबादला गंदम से किया जाए, दोनों तरफ से बराबरी हो, दोनों तरफ से बराबरी। अगर एक तरफ से गंदम कम, दूसरी तरफ से गंदम ज्यादा, तो ये क्या है, सूद। अगर एक तरफ से गंदम नकद है, दूसरी तरफ से गंदम उधार, तो ये भी सूद, यानी कारोबार में। लेकिन एक आदमी के पास गंदम नहीं है, किसी से ले लेता है, भाई 1 मन 2 मन मुझे दे दो, गंदम मेरे पास नहीं है खाने के लिए, तो ये लेना दुरुस्त है, क्योंकि ये हुस्न सलूक है। लेकिन कारोबार में, खरीदो फरोख्त में, एक तरफ से गंदम उधार, एक तरफ से नकद, तो ये सूद। इसी तरह एक तरफ से गंदम ज्यादा, दूसरी तरफ से कम, ये सूद है। इसी तरह जौ का मामला भी इसी तरह है, खजूर का मामला भी गंदम की तरह, नमक का मामला भी गंदम की तरह। इसी तरह सोने का मामला वो भी इसी तरह गंदम की तरह है कि सोने का तबादला जब सोने से हो तो दोनों तरफ से बराबर। अगर एक तरफ से सोना ज्यादा, दूसरी तरफ से सोना कम, तो ये क्या होगा, सूद होगा। या एक तरफ से सोना नकद, दूसरी तरफ से सोना उधार, तो ये सूद। इसी तरह चांदी, एक तरफ से नकद, दूसरी तरफ से उधार, तो ये सूद। या एक तरफ से चांदी ज्यादा, दूसरी तरफ से चांदी कम, ये सूद। तो इन चीजों को जब आपस में बेचा जाए तो हाथों हाथ हो सौदा और ज्यादा कमी भी ना हो। लेकिन अगर जिन्स बदल जाए, एक तरफ से सोना है, दूसरी तरफ से चांदी, ज्यादा कमी जायज है, ज्यादती कमी जायज है, लेकिन उधार जायज नहीं, बल्कि सौदा हाथों हाथ हो। इसी तरह एक तरफ से पाकिस्तानी रुपए, दूसरी तरफ से रियाल, ज्यादती कमी जायज है, लेकिन उधार ये जायज नहीं। इसको कहते हैं अरबी में रिबल फजल, हदीस पाक में, यानी इस्लामी शरीयत में इसको रिबल फजल कहते हैं। दूसरी रिबा है रिबा नसीआ। रिबा नसीआ का मतलब यह कि एक आदमी किसी को कर्ज देता 1 लाख और कहता है कि जब 1 लाख वापस करोगे
تو 1,10,000 दोगे, 10,000 मजीद दोगे मुझे। तो इसको इस्लामी शरीयत में रबिया नसिया कहते हैं। तो ये भी क्या है? हराम है, ये भी हराम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने 6 चीजों का जिक्र किया था कि अल बुर्र बिल बुर्र व शईर बिल शईर व तमर बिल तमर वल मिल्ह बिल मिल्ह अज़्ज़हब बिल ज़हब वल फिज़्ज़ा बिल फिज़्ज़ा। 6 चीजों का जिक्र किया कि इनमें ज्यादा कमी जायज नहीं है। उधार भी जायज नहीं है कि एक तरफ से उधार दूसरी तरफ से नकद। तो उलमा ने लिखा कि इसी तरह दूसरी चीजों का हुक्म भी यही होगा, यानी जो चीजें इंसानी खुराक हैं और साल भर ठहर सकती हैं, तो जब जिन्स एक हो तो जब तबादला किया जाए तो बराबर बराबर, मिसाल के तौर पर चावल का तबादला चावल के साथ दोनों तरफ से बराबर। ये ठीक नहीं कि एक तरफ से चावल ज्यादा दूसरी तरफ से चावल कम, ये ठीक नहीं है। अगर तबादला करना है तो बराबर बराबर हो और हाथों हाथ हो। यूं भी ठीक नहीं है कि एक तरफ से नकद और दूसरी तरफ से उधार। तो सूद से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचने का हुक्म दिया कि सूद जो है ना, ये भी मुहलक गुनाह है और बड़ा गुनाह है। इज्तनिबू सबअल मूबिकात अश्शिरकु बिल्लाह व सिहरो व क़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व अक्लुर रिबा। चौथा गुनाह व अक्लु मालिल यतीम, 5वां गुनाह व अक्लु मालिल यतीम। 5वां बड़ा गुनाह यह है कि यतीम का माल खाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी जो लोग यतीमों का माल खाते हैं उनके लिए बड़ी वईद बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं तो वो यूं समझे कि अपने पेट में आग भर रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं। बस यस्लौना सईरा, और ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल होंगे जो यतीमों का माल खाते हैं। तो यतीमों के जो सरपरस्त हैं, तो यतीमों के सरपरस्तों को डराया गया है कि यतीमों के माल की क्या करने, हिफाजत करने है और उनके माल को नाजायज तरीके पर खाना नहीं। दौर जाहिलियत के अंदर यतीमों के जो सरपरस्त होते थे, तो यतीमों का जो अच्छा माल होता था, अच्छी चीज, वो अपने पास रख लेते और उनको घटिया चीज दे देते थे यतीमों के सरपरस्त। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यब, कि तुम जो उम्दा चीज है वो ले लो, रद्दी चीज यतीमों के माल में रखो, ये तब्दीली ठीक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की तब्दीली से मना किया कि सरपरस्त अच्छी चीज अपने पास रख ले और घटिया चीज यतीम के माल में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया और अल्लाह ने फरमाया वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यब। लेकिन अगर कोई आदमी यतीम का सरपरस्त है, यतीम के माल की देखभाल करता है और उसको अपने काम करने का मौका नहीं मिलता, यतीम के माल की देखभाल करता रहता है, तो अब वो मेहनत की बकदर खा सकता है। यतीम के माल में जितना मेहनत करेगा तो मेहनत की बकदर खा सकता है, ज्यादा नहीं खा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को यूं बयान फरमाया कि वमन काना फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, कि जो क्या है तंग दस्त है तो वो भी मुनासिब तरीके से यतीम का माल खा सकता है, यानी अपनी मेहनत की बकदर जायज तरीके से। वमन काना फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, लेकिन फमन काना गनियन फलयस्ताफिफ, लेकिन जो गनी है, दौलतमंद है, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, तो उसको जो है ना परहेज करना चाहिए कि यतीम के माल में से वो कुछ ना ले। लेकिन जो तंग दस्त है तो मेहनत की बकदर और जायज सूरत में वो यतीम का माल खा सकता है, क्योंकि वो मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, यतीम के माल की देखभाल करेगा।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दी है? इजाजत दी है जायज तरीके से और मुनासिब तरीके से और मेहनत की बकदर, मशक्कत की बकदर। और छठा बड़ा गुनाह वो है अत्तवल्ली यौम ज़हफ, यानी लड़ाई के दिन पीठ फेरना। काफिरों की मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, काफिरों और मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, मैदान जंग से भागना यह भी बड़ा गुनाह है। मैदान जंग से पीठ देना, भागना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यूं फरमाया कि वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम, कि जो शख्स जंग के दिन पीठ फेरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से के साथ लौटा, यानी अल्लाह तबारक व तआला का उस आदमी पर क्या है? गुस्सा है। उस आदमी पर गुस्सा है। फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना भी जहन्नम। व बिअसल मसीर, और जहन्नम जो है ना ये बुरी जगह है, जहन्नम बुरी जगह। तो इससे मालूम हुआ कि मैदान जंग से भागना, पीठ देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में भी रोका गया कि यह भी मुहलिक गुनाह है, तबाहकुन गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी वईद बयान फरमाई है। जिस तरह के हदीस पाक में इस गुनाह को बड़ा गुनाह करार दिया गया, मुहलिक गुनाह करार दिया गया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनफाल के अंदर 9वें पारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आदमी के लिए वईद बयान फरमाई है जो मैदान जंग से पीठ फेरे भागे। लेकिन दो शख्स मुस्तस्ना है। एक आदमी भागता है ताकि दुश्मन समझे कि यह भाग रहा है, फिर लौटकर दुश्मन पर हमला करे, ऐसा आदमी मुस्तस्ना है। कि एक फौजी भागता है मैदान जंग से, किस लिए? ताकि दुश्मन समझे ये भाग रहा है, फिर दोबारा क्या कर दे? हमला कर दे। तो यह शख्स भी इस वईद से क्या है? मुस्तस्ना है। दूसरा वो शख्स जो मैदान जंग से एक तरफ हो जाता है ताकि इस्लामी फौज की किसी जमात से मिलकर दोबारा जोर से हमला किया जाए, जोरदार। तो ये दो शख्स क्या है? मुस्तस्ना है। इन दो आदमी के लिए अल्लाह की वईद नहीं है। अल्लाह ने इन दो आदमी को क्या करार दिया? मुस्तस्ना करार दिया। इन दो के अलावा जो शख्स मैदान जंग से भागेगा, अल्लाह के गुस्से के साथ भागेगा, क्योंकि एक फौजी भागेगा, दूसरे देखकर वो भी क्या हो जाएंगे? बुज़दिल हो जाएंगे। तो इसलिए इस गुनाह को कबीरा गुनाह करार दिया गया और बड़ा मुहलिक गुनाह करार दिया गया। सातवां गुनाह क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफिलात, कि पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, बदकारी की, जो गुनाह से क्या हूं? बेखबर हूं, बदकारी से बेखबर है, पाक दामन है, उनको ख्याल तक नहीं आता। तो ऐसी औरतों पर इल्जाम लगाना यह भी तबाहकुन गुनाह है कि इंसान को हलाक कर देने वाला है। वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफिलात। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर यूं इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा, कि फिर 4 गवाह पेश न कर सके, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, ऐसे आदमी को 80 दूरे लगाओ, ऐसे आदमी को 80 दूरे लगाओ। फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, आइंदा ऐसे आदमी की गवाही भी कबूल न करो। उलाइका हुमुल फासिकून, ऐसे आदमी नाफरमान है, फासिक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 वईदें बयान फरमाई हैं। एक वईद ये कि इनकी गवाही कबूल न करो, इनकी गवाही आइंदा कबूल न करो। दूसरी ये कि इनको 80 दूरे लगाओ।
तीसरी ये कि उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग क्या है फासिक हैं, ये लोग क्या है नाफरमान हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत के अंदर यूं इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीन यरमून मुहसनात तिल मुमिनात गाफिलात, कि जो पाक दामन औरतों पर क्या लगाते तोहमत लगाते हैं, जो गाफिल है जिनको बुराई का ख्याल तक नहीं आता, तो लुइनु फी दुनिया वल आखिरा वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो ऐसे आदमी दुनिया और आखिरत में मलून हैं। लुइनु फी दुनिया वल आखिरा वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह के रहमत से दूर, इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह की रहमत से दूर। वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। तो ये क्या है, 7 किस्म के गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस में इन 7 गुनाहों का क्या आया है, जिक्र आया है। तो ये बड़े कबीरा गुनाह है। इसके अलावा भी कबीरा गुनाह और भी है, लेकिन इस हदीस में इन गुनाहों का क्या किया गया, जिक्र किया गया है। और कबीरा गुनाह वो होता है कि जिसके करने वाले पर हद लाजिम आए, वो गुनाह कबीरा होता है। या जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत की हो, तो वो गुनाह भी क्या होता है, कबीरा होता है। या जिसके बारे में कहा जाए कि जिसने ये काम किया वो अल्लाह की रहमत से दूर, तो इस तरह का गुनाह भी क्या होता है, कबीरा होता है। और उलमाए उम्मत ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं कि बड़े बड़े गुनाहों का क्या क्या है, जिक्र किया है। और ये 7 किस्म के गुनाह सबसे बड़े हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े गुनाह हैं, और उलमा ने मुस्तकिल क्या लिखी है, किताबें लिखी हैं। और 70 से भी उनकी तादाद क्या है, ऊपर है, ज्यादा है। तो इसलिए जिस आदमी से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर क्या करे, तौबा करे, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करे और नदामत के आंसू बहाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत गफ्फार भी है। अल्लाह बहुत माफ करने वाले हैं, बहुत बख्शने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला बख्श देंगे। तो मौत से पहले पहले तौबा कर लेनी चाहिए इंसान को, और मौत का कोई पता नहीं है कि किस वक्त मौत आ जाए, इसलिए फौरी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, जैसे अल्लाह से डरने का हक है उसी तरह डरते रहो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। तुम्हारी मौत इस्लाम की हालत में, कि तुम जब मौत आए तुम अल्लाह के फर्माबरदार हो, अल्लाह के हकाम और फराइज की क्या हो, पाबंदी करने वाले हो। इस हालत में क्या आनी चाहिए, मौत आनी चाहिए। अगर इंसान ने किसी दूसरे का हक देना है तो वो हक भी अदा करे, अल्लाह से माफी मांगे। किसी का हक इंसान ने देना है, वो हक अदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला बंदे का गुनाह क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो हर किस्म से गुनाह, हर किस्म के गुनाह से बचना चाहिए, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए, इसी तरह बड़े गुनाहों से भी बचना चाहिए। अगर हो जाए फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से आपने फरमाया कि गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो। मतलब यह कि गुनाह हो जाता इंसान है तो गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो। नेकी जो है ना, ये गुनाह को मिटा देगी। नेकी करने से गुनाह मिट जाएंगे। और ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी बयान फरमाई है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां ये गुनाहों को खत्म कर देती हैं। नेकी करने से बंदे के गुनाह मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला दूर रखे। अल्लाह इतना दूर रखे जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक़ व मगरिब के अंदर दूरी रखी है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ वल मगरिब, इसका तर्जमा भी यही है कि अल्लाह गुनाहों से इतना दूर रख जितनी तूने मशरिक़ व मगरिब में दूरी रखी है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين. اللهم أيد الفلسطينيين. اللهم انصر الفلسطينيين. اللهم انصر الفلسطينيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.